और फॉर एग्जांपल नंबर 9, यस बेटे महकमीत कौर रीड करो बेटा। Yes, sir. यस So 9.6. जी बेटा 9.6 हाँ यही है। A bullet of mass 20 grams is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. ओके What is the recoil velocity of the pistol? यस बेटे सो आपने लिखना गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू। यस आपने लिखना बेटे। हाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे क्वेश्चन क्या है जैसे हमने पहले किया था। ओके ये आपके पास एक पिस्टल है। ओके ये पिस्टल है, पिस्टल में एक बुलेट है और ये जो बुलेट है ठीक है, लेट द मास ऑफ द पिस्टल इज कैपिटल एम एंड लेट द मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल एम। Initial velocity of gun is let u1 and initial velocity of bullet is let u2 and when the bullet is fired तो बुलेट जो है ठीक है वो जा रही है इधर को ठीक है। इसका जो मास है गिवन है, मास इसका जो हाउ मच 20 ग्राम and the mass of this pistol is what that is equal to 2 किलोग्राम। ओके तो नाउ दिस बुलेट जो है ठीक है जैसे फायर किया गया इसका जो वेलोसिटी है ठीक है वो कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। ओके सतवीर सर देखना कहां पे आवाज आ रही है। एंड द velocity of the pistol let it is capital V, final velocity of bullet is let v1 and this your final velocity and velocity of coil of the pistol is let v2। okay so what is given to you, mass of bullet is equal to small m, m भी लिख रहा हूं मैं इसको कि mass of bullet is equal to what 20 ग्राम। अब बेटे देखो इधर मीटर पर सेकंड में है ये किलोग्राम में है तो ये जो ग्राम है इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1000 सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0.02 किलोग्राम। ओके इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज लेट uv लिख रहा हूं मैं इसको। ओके uv इज इक्वल टू व्हाट 0 mass of the pistol is given what 2 kilogram and initial velocity of pistol I am writing it that up is equal to 0, final velocity of the bullet v is equal to vb is equal to 150 meter per second and final velocity of pistol जो है तो हमें बेटे पता नहीं उसका हमने पता करना है। ओके so according to law of conservation of momentum, sum of the momenta of bullet and pistol before firing is equal to sum of the momenta after firing। तो बेटे आप लिखना अपने यहाँ लिखना बोलो साहस क्या, according to the law of conservation of momentum, according to the law of conservation of momentum, yes आप क्या लिखेंगे बोलो शाबाश, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू mv into ub प्लस mp up is equal to final momentum of bullet plus final momentum of gun sorry pistol, so therefore it is equal to m of bullet into final velocity of bullet that is equal to vb plus mass of pistol into final velocity of pistol। लेकिन बेटा इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की भी और पिस्टल की वो 0 है, देयरफॉर मोमेंटम बिफोर द फायरिंग इज इक्वल टू 0 ऑफ बुलेट एज वेल एज ऑफ पिस्टल is equal to mass of bullet that is equal to 0.02 into final velocity of bullet that is equal to what 150 plus
mass of pistol that is equal to 2 kilogram into velocity of pistol हमें पता नहीं है, यहाँ से पूछा है that is equal to vp. ओके ओके बेटा जी. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 0.02 into 150 is equal to 3 plus 2 bp. ओके अब 3 को बेटा इधर ले आओ, या ऐसे कर लो इसको, 2 bp is equal to 3 minus 3 सॉरी is equal to minus 3. Therefore bp is equal to minus 3 by 2. ओके बेटा जी. और Yes, sir. it is equal to minus 1.5 meter per second. So this is the required velocity of the pistol. And बेटे देखो आप दोबारा यहाँ पे माइनस आ गया तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके ओके Yes, sir. हाँ, so write down, इसके नीचे लिखो the negative sign indicates that the negative sign indicates that the negative sign indicates that the direction of motion of the pistol after firing, the direction of motion लिख लो या direction of velocity लिख लो बेटा. The direction of motion oblique कर लो velocity of pistol is opposite to the direction of motion or velocity of bullet. Is opposite to the direction of motion of velocity of the bullet. Yes बेटा जी. नेक्स्ट बच्चा कौन है? यस महक बेटा. नेक्स्ट पढ़ो दोबारा महक मीट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा जी. Yes, sir. यस Yes, sir. हाँ जी. So numerical 9.7. यस A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. बेटा जस्ट 1 The मिनट. mass of the जस्ट cart 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा. हाँ जी बेटा रीड करो दोबारा. शाबाश. Sir, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second ओके onto a stationary cart with frictionless wheels. ओके The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. वेरी गुड. आपको समझ आ गया बेटा. स्टूडेंट्स बेटा दृग बजाज आपको समझ आ गया न्यूमेरिकल. दृग बजाज. Yes, sir. चलो अब देखो बेटा पहले समझो. आप घर लाओगे, घर तो मेरे को बनाने नहीं आएगी लेकिन एक घर लाओगे, एक घर लोगे. एक गर्ल जो है इसका जो मास है, मास ऑफ द गर्ल mg इज इक्वल टू 40 kg और ये इधर को भाग रही है. ओके और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर. इधर को मतलब हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड. और आगे यहाँ पे ना एक कार्ड पड़ा हुआ, कार्ड जैसे स्केटिंग बोर्ड होता है ना वैसे पड़ा हुआ. ठीक है एक स्केटिंग बोर्ड है. ओके और स्केटिंग बोर्ड की जो मास दे रखी है दैट इज 3 kg. ओके mass of the cart mc is equal to what, that is equal to 3 kg. initial velocity जो गर्ल की है, ओके you can say that is equal to ug का मतलब समझ गए ना. initial u and g for girl वो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन initial velocity of this cart uc is equal to what, बोलो बेटा जी कितनी है? 0. वो खड़ा है ना, समझ गए. अब ये लड़की यहाँ से गई बेटा तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? बोलो सर मोमेंटम यहाँ पे गर्ल का कितना हो गया? pg इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल pg इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल. वो कितना हो गया बेटा? बोलो सर दैट इज इक्वल टू 40 into 5
इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा जी 200 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो गया कार्ड का, दैट इज इक्वल टू mass is equal to what 3 into velocity 0, so therefore it is equal to 0. Okay, yes sir, तो इन दोनों की जो सम है, जब ये लड़की इसके ऊपर बैठ गई उससे पहले, जब इन दोनों का कोलिजन हुआ उससे पहले दोनों का सम कितना हो गया मोमेंटम का, सो दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? yes sir, अब क्या किया है, जो लड़की है इसने जंप किया और ये इस कार्ड के ऊपर बैठ गई जाके ना। ओके, अब देखो जब ये कार्ड के ऊपर बैठ गई तो कार्ड के ऊपर इसका वजन जुड़ गया जाके ना, मास इसका इकट्ठे नहीं हो गए दोनों। yes sir, तो देखो Yes, बेटा sir. अब जब ये यहाँ पे पहुंच गई जाके तो इनका फाइनल जो मास हो गया कॉमन हो गया, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ड। और मान लो जब ये इसके ऊपर बैठ गई उस टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी कैपिटल वी, दोनों जब मिलके इकट्ठे चले स्केट लगे करने तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी वी। सो देयरफॉर फाइनल मोमेंटम दोनों का कितना हो गया, क्योंकि दोनों का कंबाइंड मास है तो दोनों का कॉमन मोमेंटम होगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ गर्ल एंड कार्ड इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ड इनटू दोनों की कॉमन वेलोसिटी according to law of conservation of momentum। बेटा बोलो शाबाश। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार्ड इज इक्वल टू दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना आ गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मास ऑफ गर्ल सॉरी फाइनल मोमेंटम ऑफ गर्ल दैट इज इक्वल टू pg डैश प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ कार्ड pc डैश। समझा रहा है आपको? yes sir, सो बेटा ये आ गया, फर्स्ट तो आ गया हमारे पास ही, तो हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया। दोनों का सम कितना आ गया बोलो शाबाश 200 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गर्ल कितना है, मास ऑफ गर्ल इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा सॉरी ये आ गया बेटे मास ऑफ गर्ल इनटू गर्ल की वेलोसिटी कितनी है जब इसके ऊपर बैठ के कार्ड के ऊपर कैपिटल वी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ कार्ड दैट इज इक्वल टू pc सॉरी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्ड इनटू फाइनल वेलोसिटी कार्ड की कितनी है बेटा, दोनों की सेम है, Capital V. और कितनी है कैपिटल वी। तो अब कैपिटल वी को कॉमन ले लो, हमारे पास ये आ जाएगा ना mg Yes, sir. प्लस mc इनटू b। ओके, सो देयरफॉर Yes, आ गया sir. हमारे पास कितना आ गया 200 इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल 40 प्लस मास ऑफ वाटर कार्ड 3 इनटू b। So therefore V is equal to 200 upon 43. V is equal to 200 upon 43 is equal to plus 4.65 meter per second. Okay बेटा जी, yes sir, Yes, sir. any doubt? Yes, sir. हाँ बोलो डाउट क्या बेटा, No, पूछो sir. हैं? No, sir. डाउट पूछना नहीं है Excuse me, sir. जी बेटा। Clear है। Sir, जी बेटा। दोबारा समझा दो एक बारी। बेटे वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, ओके वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, ओके बट देख लो एक बार, फिर भी देख लो। आ गर्ल बेटे ये दौड़ रही है, ओके अलोंग एक्स एक्सिस, ओके और इसका मास 40 kg है और इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आगे एक कार्ड पड़ा हुआ है, वो खड़ा ही है, कार्ड स्टेशनरी है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और उसका मास है 3 किलोग्राम। ओके ओके, तो जब देखो दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, हम देखते हैं टकराने से पहले का मोमेंटम दोनों का सम और टकराने के बाद दोनों के मोमेंटम का सम। ओके, तो देयरफॉर जब ये गर्ल इसके ऊपर बैठ जाती है तो दोनों का मास कंबाइन होकर कितना हो जाता है mg प्लस mc दैट इज इक्वल टू 43 हो जाता है ना, mg प्लस mc कितना होता है 43
और मान लो दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है, क्योंकि कर्ल अब कार्ड के ऊपर है, ना तो उससे आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, जो कार्ड की वेलोसिटी होगी वो कर्ल की वेलोसिटी होगी। तो देयरफॉर ये आ गया बेटे आपके पास कितना आ गया 40 + 3 × v, v जो है इनकी कॉमन वेलोसिटी है। ओके, हमारे पास वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ व्हाट कार्ड इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम डैश लगाया है ना, डैश डैश, फाइनल मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ कार्ड। ओके, तो बेटे दोनों का मोमेंटम देखो, इनिशियल तो हमने निकाल लिया था, कितना आ गया था कॉमन, दोनों का आ गया 200 इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल इनटू वेलोसिटी ऑफ गर्ल फाइनल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ कार्ड इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ड। ओके, तो देयरफॉर ये आ गया बेटे मास ऑफ गर्ल। अब इसमें से अगर हम v को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा mg प्लस mc, कॉमन v है ना, तो ये कितना है 40 + 3, ये आ गया बेटे 43 है ना, तो 43 v is equal to 200, so therefore v is equal to 200 upon 43 is equal to प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, चलो लगा दिया, बताता हूँ इसको, 4.65 मीटर पर सेकंड। प्लस का मतलब हो गया गर्ल जिस साइड में जा रही थी वो कार्ड के ऊपर जंप करने के बाद भी उसकी वेलोसिटी उधर कोई है। हाँ जी बेटा, चले आगे। एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. जी बेटा। सर मेरा ना सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डाउट था एक। हाँ बोलो बेटा। सर इफ अ कार ऑफ वेट 100 kg moves with a velocity of 8 meter per second frictionlessly, then how much force is applied? What? Sir, a car of weight 100 kg moves with a speed of 5 meter per second frictionlessly. Okay. Then how much force is applied? मूव कैसे कर रही है वो? सर 5 मीटर पर सेकंड की 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, पर फ्रिक्शन नहीं है सर। बेटा ये क्वेश्चन, अब ये जिस फोर्स से वो चल रही है फोर्स कौन सी है हमको दिया है? सर वो नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये बताया कि फ्रिक्शन नहीं है, तो फोर्स कितनी लग रही है? मेरी बात सुनो, फिर क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन पूछा होगा भी अगर कोई कार जिसका मास 1000 kg है या वेट 1000 kg है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है और उनकी जो मोशन है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो बताओ उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए ना? हाँ जी सर, यही क्वेश्चन था। यही होगा क्वेश्चन, है ना? अच्छा, तो बेटा देखो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब फाइनल वेलोसिटी भी उतनी है जितनी इनिशियल थी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 5 - 5 = 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मास तो 0 नहीं हो सकता कार का, इसका मतलब फोर्स 0 है ना? यस सर। 0 force is required, but no force is required to move the, okay, अगर frictionless with same velocity। yes बेटा, yes। दरिक बजाज सेकंड 9.8 एग्जांपल रीड करो बेटा। Okay, sir. जी बेटा। Example 9.8. Yes. Two hockey players of opposite teams, while trying to hit a hockey ball on the ground, Yes. collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. Okay. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of the two players and the ground is negligible. Okay, चलो देखो बेटा, जाहिर सी बात है जब हॉकी का प्लेयर लगता है तो एक गोल यहाँ पे होता है, दूसरा गोल यहाँ पे होता है। ए वाली जो टीम है, इस टीम के खिलाड़ी बॉल को इधर लेके जाते हैं, ए वाली जो टीम है इसके खिलाड़ी बॉल को इधर करते हैं, है ना? थोड़ा मस्ती करना, वो दिख नहीं रहा है। ओके ओके, ये ना दोनों Yes, हॉकी sir. का गोल पोस्ट है। ओके,
हॉकी का मैच दिखा रहा हूँ और ये मैं दिखा रहा हूँ दोनों प्लेयर, ए वाला जो प्लेयर है वो इधर को गोल को लेके जा रहा है बॉल को, और ए वाला प्लेयर इधर को लेके जा रहा है। ये जो प्लेयर है इसका जो मास है वो दे रखा है 60 किलोग्राम। ओके, इसका जो मास है 60 किलोग्राम, और इसका जो मास है M2 है ना, M2 जो है वो दे रखा है कितना, बोलो शाबाश, 55 किलोग्राम। ओके 55 है ना। ओके, अब ये वाला जो प्लेयर है बेटे, ये इनिशियल वेलोसिटी, इसका मास m1 मान लो और इसका मास m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू u2। बड़े ध्यान से देखना बेटा, u2 इसको ले रहा हूं मैं -6 मीटर पर सेकेंड। व्हाई आई एम टेकिंग माइनस? Because it is applied opposite to the direction of motion. चाहे इसको माइनस ले लो चाहे इसको माइनस ले लो, आंसर एक ही आएगा। ओके यस सर। ओके, हाँ, आप चाहे u1 को माइनस ले लो तो इसको पॉजिटिव ले लेना, अगर आप, क्योंकि हम लेते हैं जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड को जाता है नेगेटिव आता है, ओके, उसको माइनस मानते हैं। आप इसको पॉजिटिव कर लो, इसको नेगेटिव मान लो, करके देखना आप। ओके, तो देयरफॉर बेटे अब होता क्या है, जब यहाँ पे दोनों पहुंच जाते हैं ना कि दोनों प्लेयर, वो दोनों एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जाते हैं, मतलब ओके, एक दूसरे में लपेट के वो जुड़ जाते हैं। अब देखो एक किधर से आया था, एक किधर से आया था, एक की वेलोसिटी कुछ है, दूसरे की कुछ है, एक की मास कुछ है, दूसरे की कुछ और। ओके, अब जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, कैसे कितना न्यूमेरिकल किया हमने, टकराने के बाद गर्ल और जो कार्ड वो दोनों जुड़ गए ना, तो पता चल गया मैं बाद में दोनों किधर को गया, तो पूछ रहा है बताओ इनकी फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगी। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, है ना। यस सर। Yes, sir. तो लेट देयर कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, दिस मच। ओके, और इनका मास कितना हो जाएगा बेटे, कंबाइंड मास m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, बोलो शाबाश, 60 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 115 kg. 150। So therefore, initial momentum of body number 1 plus initial momentum of body number 2 is equal to final momentum of body number 1 into final velocity of body number 1 plus final momentum of body number P1 dash P2 dash into final velocity of body number 2। अब VV क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या कॉमन। ओके, सो देयरफॉर बेटा ये आ गया मेरे पास कितना, बोलो शाबाश, इट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। m1 is equal to what, that is equal to 60 into 5 plus 55 into -6 is equal to, okay, m1 plus m2 into v, और ये आ गया बेटे 60 into 5 कितना आ गया, बोलो शाबाश, 300। and what is 55 and this your minus 6 कितना हो जाएगा, 330. हैं, Minus 330. minus 330. minus 330 is equal to 115v। 300 minus 330 is equal to what, that is equal to minus 30 is equal to 115v। Therefore v is equal to minus 30 divided by 115। it is equal to बेटा जी कितना आता है आंसर, बोलो शाबाश, that is equal to माइनस that is equal to minus minus 0.26 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को बताना, आपको समझ आ गया बेटा जी, एक पिछला न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल दोनों सेम ही है ना। यस सर। हाँ बोलो शाबाश। Yes, sir. तो अब ये जो माइनस साइन है क्या बता रहा है, ये जो माइनस साइन है वेलोसिटी ली थी हमने प्लेयर नंबर 2 की, है ना। ओके, यस Yes, सर। sir. तो जो फाइनल Yes, sir. वेलोसिटी आ रही है बेटे, वो वेलोसिटी भी इधर को आ रही है ना, फाइनल वेलोसिटी है वो भी आ रही है, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.26 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद लिखना, या लिखेंगे आप, देयरफॉर द नेगेटिव साइन इन, राइट डाउन, देयरफॉर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट final velocity of the entangled players
final velocity of the entangled players will be along negative x-axis. Will be along negative x-axis or in the direction of motion of player number 2, or in the direction of motion of player number 2. Beta ji, any doubt? No, sir. Yes. Yes, students, girls. हाँ जी बेटा जी. बेटा सतवीर सर ने जो है गूगल फॉर्म किया है, शेयर शाबाश, अपना गूगल फॉर्म फिल करो. यस बेटे. अब मेरे को बाकी बच्चे तो दिखाई दे रहे हैं. दृग बजाज बेटा, am I audible to you? Yes, sir. तो रीड करो बेटा. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है महक मीत बेटे आप रीड करो. मैंने फुल स्क्रीन की है, मेरे को ना आपके फेसेस नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो मैं लिख लेता आपके नाम. ओके. तो मैंने जो पहले 2 बच्चे देखे थे उनका नाम मैं ले रहा हूँ. ठीक है, बाकी माइंड नहीं करना बेटा जी. ठीक है, चलो मैं एक पार्टिसिपेंट्स को ओपन कर ही लेता हूँ. हाँ जी बेटा. यस सर थोड़ा साइड पर होना, वो कर रहा हूँ. ओके. यस सर. हाँ जी महक बेटा. यस रीड करो शाबाश. नेक्स्ट जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है. यस. Page 126 पे. जो इन इसी पेज पे बेटे नीचे क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4 क्वेश्चन है ना. Yes, sir. if action. हाँ यस The रीड first करो. question is, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. हाँ ये बोल रहा है बेटे भी अगर एक्शन और रिएक्शन जो है वो बराबर होते हैं तो जितना जोर घोड़ा लगा रहा है उतना जोर कार्ट लगाएगा, तो फिर कार्ट चलता कैसे है ना. राइट डाउन बेटे आंसर. राइट डाउन. यस ऑल ऑफ यू. if the force of a horse, write down, if the force of horse is greater than the friction, if the force of horse is greater than the frictional force, comma, the cart will move. The cart will move. The force of horse is a. The force of horse is a component of the reactional force. The force of horse is a component of the reaction force. इसका मतलब हो गया ना, मान लो जैसे कि हॉर्स ने अगर मान लो 500 न्यूटन फोर्स लगाई है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मान लो 100 क्या है न्यूटन है, तो मतलब 500 फोर्स हॉर्स लगा रहा है, उसमें से 100 न्यूटन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेस्ट हो रही है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हॉर्स की मोशन के अपोजिट होगी, तो पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा. तो 500 न्यूटन में से 100 न्यूटन जो फोर्स है वो किसकी है, हॉर्स की है, वो खत्म हो गई किसमें, फ्रिक्शन को खत्म करने में. बाकी बची कितनी. यस 400 न्यूटन. 400 न्यूटन. तो जो 400 न्यूटन है ये एक हिस्सा है किसका, कंपोनेंट है 500 न्यूटन का ना. Yes, sir. हाँ यस. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो. यस दृग बजाज. Sir, explain why is it difficult for a fireman to hold a hose which lets large amounts of water at a high velocity. बेटा आपने देखा होगा गर्मियों में क्या मतलब लगी रहती है. आप न्यूज चैनल खोलो, कोई ना कोई बॉम्बे में फलानी केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, वहां लगी की लगाई वो अलग बात है, और फिर वहां पे एकदम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जाती है. ओके. और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टैंक से जो पाइप आती है
उसमें बेटे कंप्रेसर से ना वो भर जाती है, क्या होता है ना, पानी को धक्का मारा जाता है, और आग जितनी ज्यादा होगी जाहिर है उसको बुझाने के लिए उतना पानी चाहिए। तो इसका मतलब जो होस है, जो पाइप है, उसकी जो नोजल है, उस नोजल में से बड़ा बारीक करके तीखा सा पानी निकलता है, लेकिन बहुत सारा पानी निकलता है। तो और पानी जो है फैल जाता है, जितना पानी फैलेगा उतना वो रिएक्शन करेगा ना। ओके, तो पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट। तो एक फायरमैन जो है अकेला, देखा होगा अपने, अकेला उसको हॉस पाइप को नहीं पकड़ सकता। अगर वो अकेला उसको पकड़ेगा तो उसको आगे से नोजल घुमा के ना पानी का फ्लो कम करना पड़ेगा। अगर पानी का फ्लो उसने फुल कर दिया तो वो हॉस पाइप के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन इतना ज्यादा होगा, है ना। आप देखो बेटा, प्लेन होता है, प्लेन है ना, फाइटर प्लेन होता है, वो 2400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, पर आवर की स्पीड से जाता है फाइटर प्लेन। तो देखो उसकी जो एग्जॉस्ट गैसेस है ना, एग्जॉस्ट गैसेस का मतलब जो उसका इंजन होता है, जो उसके जेट इंजन है, उनमें से जो गैसेस धुआं जो जल के निकलता है बाहर को, वो इतना फास्ट निकलता है और इतना ज्यादा धुआं होता है, वो हवा को धक्का देके देखो 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागता है फाइटर विमान। तो सोचो भला कितना धक्का लगता होगा ना। अगर उसका मान लो 100% हिस्सा, 1% हिस्सा भी अगर नोजल में आ गया तो मतलब एक आदमी को उड़ाने के लिए काफी है ना। इसलिए होता क्या है, आपने देखा होगा, वो जो नोजल होती है मैक्सिमम गाड़ियों में वो गाड़ी की बॉडी के ऊपर फिट की होती है ना, मतलब जोर से वो पूरे स्प्रिंग स्प्रांग मारे पूरा ड्रिप होकर के खड़ी होती है। तो राइट डाउन बेटा, यस आंसर, द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, the large amount of water coming out from the hose pipe is action. The large amount of water coming out from the hose pipe is action, and therefore the reaction on the hose pipe, therefore the reaction on the hose pipe is large. Hence, it is difficult to hold. Hence, it is difficult to hold a hose pipe ejecting water. Ejecting. To hold the hence it is difficult. Hence, it is difficult to hold the hose pipe ejecting water. Okay, sir. हाँ बेटा, यस, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जल्दी पढ़ो बेटा, टाइम 1 मिनट का रहता है, लेस देन 1 मिनट। So from a rifle, a mass नहीं है बेटा, राइफल है। of mass 4 kg. हाँ। Yes, sir. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 grams is fired with an initial velocity of 35 meter per second. बेटा ये Calculate the लिसन, initial. वो न्यूमेरिकल है जो हमने पहले किया ना। Yes, sir. वहां पे पिस्टल का मास 3 किलोग्राम था और बुलेट का जो मास है वो 20 ग्राम था। ओके, लेकिन यहाँ पे 50 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी वहां पे आई थिंक 200 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पे 35 है। कर लेंगे ना इसको आप? Yes, sir. Yes, sir. ओके, sir. यस बेटा, रीड क्वेश्चन